ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں گاڑی کا ہارن سن کر باہر نکلی۔ ارے رانا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ امی نے اپنی زرق برق ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ تبھی انہوں نے تنبیہ نظروں سے میرے سفید لباس کو دیکھ کر کہا، ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، فاتحہ خوانی میں نہیں۔ چلیے ممی، صبا نے آ کر کہا۔ وہ بھی ممی کی طرح خوب سجی سنوری ہوئی تھی۔ ممی تیز نظروں سے میری طرف دیکھتی ہوئی گاڑی کی طرف چل دی۔ انہیں ہمیشہ میری سادگی سے شکایت رہتی۔ میرے برعکس صبا بالکل ممی پر گئی تھی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی۔ اسے اچھے اچھے لباس پہننے کا جنون تھا، میک اپ کی شوقین، جبکہ میں پہن تو ہر لباس لیتی، لیکن میرے پسندیدہ لباس ساڑی اور شلوار قمیص تھے، وہ بھی سادہ سے۔ میک اپ تو میں کبھی کبھی ہی ہلکا سا کیا کرتی تھی۔ یہی سادگی میری سانولی رنگت میں وقار اور کالی کالی موٹی آنکھوں میں ایک سنجیدگی لے آتی۔ مجھے اپنا یہ روپ بہت عزیز تھا۔ جہاں طرح طرح کے میک اپ اور سرسراتے ہوئے لباس ہوتے، وہاں میری شخصیت کی اپنی ایک الگ حیثیت ہوتی، بالکل منفرد اور انوکھی۔ ممی جب صبا کا میرا تعارف کرواتی تو بہت سی آنکھوں میں استفہامیہ کیفیت ہوتی۔ وہ باری باری صبا اور امی کو دیکھتی اور پھر مجھے دیکھتی، تب امی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی اور دل ہی دل میں مجھے ان کی سوچ پر ہنسی آتی۔ آج میرا یہاں پروگرام تھا، اس کے بعد پارٹی تھی، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آئیے آئیے مس، آپ ہی کا انتظار تھا۔ سیٹھ کریم والا نے خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہی اس تھیٹر کا مالک تھا۔ میرے ہال میں داخل ہوتے ہی ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور بھی گلوکار آئے اپنے اپنے آئٹم پیش کر رہے تھے۔ میں اسکول میں اکثر گایا کرتی تھی، کلاس میں میری آواز کو سبھی سراہتے تھے، لیکن کبھی اتنے ہجوم کے سامنے میں نے نہیں گایا تھا۔ کالج کے سالانہ جشن میں نے بھی حصہ لیا اور احمد فراز کی ایک خوبصورت غزل گائی۔ وہیں ٹی وی کے پروڈیوسر مہمان خصوصی تھے، انہوں نے مجھے ٹی وی میں پروگرام میں آفر دی۔ بس پھر کیا، ہر خاص و عام میں میری آواز مقبول ہو گئی، ہر طرف سے پیشکش کی بھرمار ہو گئی۔ تقریباً ہر پکچر میں میرا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ضرور ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ ممی تو پھولے نہ سماتی تھیں۔ ہر پروگرام، ہر پارٹی اور ہر تصویر میں وہ پیش ہوتیں اور سر تان کر فخر سے مجھے اپنی بیٹی کہہ کر مخاطب کراتیں۔ مجھے اس مقام پر پہنچ کر عجیب قسم کی بیزاری ہونے لگی۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی، ہجوم سے، مردوں کی حریصانہ نظروں سے اور الٹرا ماڈرن خواتین کے عریاں جسموں کو دیکھ کر مجھ پر ایک بوکھلاہٹ طاری ہو جاتی، آنکھیں شرم سے جھک جاتیں۔ میرا دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر ان سے دور بھاگ جاؤں، جہاں سکون ہو، آرام ہو، تنہائی ہو، بناوٹ اور نمائشی چہرے نہ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں نے کترانا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی ڈیٹ مانگنے آتا تو میں انکار کر دینا چاہتی، لیکن ممی اپنی طرف سے ڈیٹ دے دیتی، پھر مجھے مجبوراً گانا پڑتا۔ آج بھی بدلِ ناخواستہ آنا پڑا۔ آخر میں میری باری تھی۔ میں تالیوں کے ہجوم میں اسٹیج پر آئی، ایک نظر ہال میں بیٹھے شائقین کو دیکھا۔ سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہر فنکار، گلوکار فخر محسوس کرتا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں تماشائی ہوں اور ہر آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ میرا دل درد سے بھر گیا۔ میں نے ایک درد بھری غزل چھیڑ دی۔ ساری محفل پر سکوت چھا گیا۔ سب میری آواز میں کھو گئے۔ ہر دل کی یہ آواز اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگی۔ اس دنیا میں ہر چیز مصنوعی ہے، کاش پیار تو بے لوث ہوتا۔ آخری شعر پر شائقین نے خوب داد دی۔ اس غزل کی بار بار فرمائش آئی۔ میں جیسے اس غزل میں ڈوب ہی گئی تھی، اور جب میں باہر نکلی تو ہر طرف سے آٹوگراف کی صداؤں کے ساتھ کئی ہاتھ میرے آگے پھیل گئے۔ میں آٹوگراف ایک کو دیکھتی، دوسری طرف ایک اور، جیسے تیسے میں اس بھیڑ سے باہر نکلی۔ ممی اور صبا مجھے احمد کہتی تھیں کہ میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر گمنامی اختیار کرنا چاہتی تھی، شہرت جس کے انتظار میں فنکاروں کی عمریں بیت جاتی ہیں، جبکہ میں چاہتی تھی کوئی ایسا ہو جو مجھ سے بے لوث پیار کرے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، شادی کا فیصلہ۔ جب بھی شادی کی بات آتی ممی یہ کہہ کر ٹال جاتی،
राना अभी तो बच्ची है, ऐसी भी क्या जल्दी है, आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। मम्मी ने ये कहकर मलिक खावर को टाल दिया तो उनके जाने के बाद मैं मम्मी के कमरे की तरफ गई। वो सोने की तैयारी कर रही थी। मम्मी, मैं आपको बच्ची लगती हूँ? मम्मी ने आंखों में प्यार भरकर कहा, हाँ, मेरे लिए तो तुम अभी बच्ची ही हो। मम्मी, 25 साल की अगर बच्ची होती है तो बड़ी कब होगी? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज तुम्हें अपने बड़े होने का ख्याल कैसे आया? इसलिए कि मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, एंजॉयमेंट रहेगी। मम्मी ने गहरी सांस ली। एक रोज़ जब मैं स्टूडियो से नगमा रिकॉर्ड करवा कर बाहर निकली, एक सहाफ़ी मम्मी के पास बैठा था। तब इंटरव्यू के दौरान मम्मी ने मेरी शादी का जिक्र किया। फिर क्या था, चारों तरफ से रिश्तों की भरमार हो गई। असलम, मकसूद, राहील, अजीज़, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने पैगामात भेजे। रोज़गारों के चक्कर लगने लगे। हर एक ने अलग अलग अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। अम्मी ने मेरी राय पूछी और सोचने का वक्त मांगा। सभी मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझ पर परवाने की तरह निसार होने को तैयार थे। मैं जल्दी में इंतखाब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जिस ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद थी वो मुझे मांगने से नहीं मिल सकती थी। हेलो जी, फरमाइए, राना ने माउथपीस में कहा। ओ शुक्र है आप मिल गई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप कौन बोल रहे हैं? जी राना साहिबा, मेरा नाम अनवर यूसुफ है। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने परसों मुझे ऑटोग्राफ दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही फ़ोन रख दिया। अजीब अहमक आदमी है, खुद ही फ़ोन किया, खुद ही रख दिया। ओहो भाई, क्या हर वक्त सर लपेटे मसल्ले पर बैठी रहती हो? सबा ने मुझे फिर से मसल्ले पर बैठा देखकर उकताए हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या बात है? मैंने दुआ मांगकर पूछा। भाई, मुझे तुमसे बात करनी है और मैं तुम्हारे फारिग होने का बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। तुम मुझे इस तरह देखकर खुश नहीं होती हो कि तुम्हारी बहन आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही, वो बेहयाई उरियानी की तरफ नहीं जा रही, बल्कि सीधे रास्ते की तरफ जा रही है जिसमें उसके लिए दुनिया और आखिरत की जीत है। तुम्हारा ये फ़लसफ़ा मेरी समझ से बाहर है। सबा बात किए बगैर चप्पल घसीटती चली गई। वाकई ये फ़लसफ़ा आज की नस्ल की समझ से बाहर है। हम स्कूल कॉलेज के इम्तिहानात के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कामयाब होने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, मगर हमें इस ज़िंदगी के इम्तिहान की फ़िक्र ही नहीं जो हमारी ज़िंदगी का मकसद और नसीबुल-ऐन है। इसमें कामयाब होने के लिए हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं? अपनी रवायात छोड़ दी, अपना मकसद हयात भूल गए। रोज़े महशर जब हमारा रिज़ल्ट निकलेगा तो तब क्या होगा? मर्द तो मर्द, आज की औरत भी बेहया हो गई। जिससे उसकी पहचान होती थी वो लिबास कहीं खो सा गया। ये मशरिक़ की औरत को हो क्या रहा है? खैर, दूसरे रोज़ मेरा प्रोग्राम था और कुछ नगमे भी रिकॉर्ड होने थे। मशहूर और मारूफ मुल्क की माया नाज गुलकारा राना नरगिस की ज़ुबान पर फालिज गिर पड़ा, जिसकी वजह से वो अब गा नहीं सकेंगी। ये खबर पढ़ने वालों पर बिजली बनकर गिरी। अस्पताल में लोगों का तांता बन गया। सब हैरान थे और इसकी सच्चाई जानना चाहते थे। शादी के ख्वाहिशमंद वो लोग जो मेरे लिए पेश थे, सब आए और मेरी खामोशी देखकर ऐसे हो गए जैसे फिर इन्हें ख्याल तक ना आया। और एक पुरसोज गले और चटकती आवाज़ वाली गुलकारा मैं अब भी थी, जिसकी आवाज़ के साथ कलियां खिल जाती थीं, गुलाब महकने लगते थे, दोनों जहां झूमने लगते थे। आज वही राना रुक रुक कर बोल रही थी। सब हमदर्दी से देखते चले जाते। अब जब वो घर में कमरे में तन्हा होती तो कोई ना आता। राना के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आ जाती कि कैसे लोग उससे मोहब्बत करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, और अब उसकी ज़िंदगी से यूं खो गए जैसे कभी आए ही ना हों। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। तीसरी बार घंटी बजी। मम्मी और सबा किसी पार्टी में गई थीं। नामालूम मुलाजिम कहाँ थे। राना ने झंझलाकर खुद ही रिसीवर उठाया। क्या आप राना नरगिस हैं? दूसरी तरफ से सवाल किया गया। मुझे बहुत अफसोस है आपकी आवाज़ ख़राब होने का। मैं आपका एक छोटा सा परिस्तार हूँ, अनवर यूसुफ। आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है जी, वो सादगी से बोला। वैसे आप बिल्कुल सेहतमंद और ठीक ठाक तो है ना? वो फिर बोला। उसने पहले भी मुझे फ़ोन किया था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे बिला वजह नहीं मिलूँगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जी फरमाइए, राना ने कहा। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? शादी? यह गैर मुतवक्के सवाल सुनकर वो हैरान रह गई। जी, वो इत्मीनान से बोला।
जवाब दीजिए। मैं समझी नहीं। आप इतना आसान सवाल नहीं समझी? वो हल्का सा हंसकर बोला। खैर आप सोच कर जवाब दीजिएगा। उसके साथ ही अनवर यूसुफ ने फ़ोन रख दिया। अजीब पागल आदमी है, न जान न पहचान शादी की पेशकश कर दी। वैसे है दिलचस्प। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा आपसे कोई मिलने आया है, फजलू ने आकर मुझे बताया। मिलने आया है? कौन? पता नहीं जी, अनजान आदमी है। कहता है राना बीबी को बुलाओ। मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। उसके साथ ही ड्राइंग रूम की तरफ सोचती हुई चल दी। पर्दा उठाया तो सामने ही ब्राउन सूट में खूबसूरत नौजवान बैठा दरवाजे ही की तरफ देख रहा था। आंखें इतनी गहरी कि पहली बार ही मैं डगमगा गई। सलाम का जवाब दिया तो कहने लगा, पहचान तो गई होंगी। मैंने कहा मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ, फिर कैसे पहचान सकती हूँ? मुझे अनवर यूसुफ कहते हैं। वो बोला, अच्छा तो आप हैं अनवर यूसुफ। मैं उसकी शख्सियत से मरगूब हो गई। आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? लगन सच्ची हो तो क्या चीज़ है जो मिल नहीं सकती। वो दिल नवाज मुस्कुराहट से बोला, आपको मेरे आने का मकसद तो मालूम है, तो फिर क्या इरादा है? उसने पूछा। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती। बोला, ठीक है आप सोच कर जवाब दीजिएगा। बस यही सब कहकर वो चला गया और मैं उसे गेट से निकलते देखती रही। ऊंचा दराज कद, खूबसूरत नक्श और कातिल आंखों वाला अनवर यूसुफ एक आइडियल शख्स था। रफ्ता रफ्ता हम एक दूसरे के करीब आ गए। यूसुफ बहुत ही पुरखुलूस था और मेरा ख्याल रखने वाला था। वो सारी बातें धीमे धीमे लहजे में करता तो माहौल एकदम सहरज़दा हो जाता। मेरा दिल चाहता वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। एक दिन मैंने यूसुफ से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझसे शादी का ख्याल क्यों आया? कहने लगा, अच्छी तो तुम मुझे पहली नज़र में लगी थी। जब एक रिसाले में तुम्हारी फ़ोटो देखी, सर पर सलीके से दुपट्टा डाले, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट सजाए, तुम मुझे बहुत मुतासिर कर गई। फिर जब थिएटर में तुम्हें गाते सुना, तब भी सफ़ेद लिबास में दुपट्टा ठीक से ओढ़े तुम बहुत मासूम लग रही थी, जैसे कोई पाकीज़ा रूह नगमा सरा हो। फिर तुमसे ऑटोग्राफ लिया। तुम्हारी तहरीर बहुत ही सादा और पाकीज़ा है। आजकल की लड़कियां गलत डगर पर चल रही हैं, ये तो तुम भी देख रही हो। अब तो हमारे मुआशरे में ऐसी लड़कियां नापैद ही हो गई हैं। वो मुझे शौक़ नज़रों से देखता हुआ बोला, तुम्हारी आवाज़ के बिगड़ने का मुझे बहुत अफसोस हुआ। तब मुझे तुमसे शादी का ख्याल आया। एक बात तो बताओ राना, गाना तुम्हारा शौक़ था? अगर तुम्हारी आवाज़ दुरुस्त हो जाए तो तुम क्या गुलकारी इख्तियार करोगी? पहले तुम बताओ, मुझे गाना चाहिए या नहीं? मैंने पूछा तो कहने लगा, मेरा ख्याल तो है कि नहीं, बस मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे जज्बात को ठेस तो पहुँचेगी, लेकिन तुमने मुझसे पूछा है तो मैंने बता दिया है। अगर बाद में तुमने गुलकारी शुरू की तो मेरे साथ वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम यूँ स्टेज पर खड़े होकर गाना गाओ। लोगों का तुम्हें देखना, हर तरह की नज़र शामिल होती है। मैं तुम्हें शमाए महफिल नहीं, शमाए खाना बनाना चाहता हूँ। अब तुम इसे रकाबत कह लो या गैरत, चाहो तो मेरा हाथ थाम लो या झटक कर चली जाओ। मैंने कहा, यूसुफ मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। वो शिद्दत जज्बात से मेरा हाथ अपनी मुट्ठियों में भींच रहा था। कहने लगा, मैं कल तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। मैं दूसरे रोज़ यूसुफ के साथ उसके घर गई। वो एक छोटा सा बंगला था जिसके छोटे से लॉन में नफासत और खूबसूरती से फूल सजाए गए थे। यूसुफ की अम्मी बेहद सादा और नफासत पसंद थी। वो भी उसी की तरह पुरखुलूस थीं। नूरानी चेहरे वाली खातून से मैं बहुत ही मुतासिर हो गई। इन लोगों में ज़रा भी बनावट का एहसास नहीं था। मैं सरशार सी वापस आ गई। मम्मी ने मुझे बड़ा समझाया कि ये लोग कदामत पसंद हैं। मैंने कहा, यही तो हमारे इस्लामी मुआशरे की सही अक्कासी है और यही मुझे पसंद है। ठीक 1 हफ्ते बाद यूसुफ ने मंगनी की रस्म अदा करके एक हसीन से नाजुक पायदार रिश्ते की बुनियाद रख दी। अगले दिन मुझे अपने कंधों पर दबाव के साथ परफ्यूम की मखसूस महक दिमाग को मखमूर करती महसूस हुई। मैंने अपने हाथ उनके मजबूत हाथों पर रख दिए। मंगनी मुबारक हो रानाई, यूसुफ मसरूर आवाज़ में बोला। आपको भी मुबारक हो। वो दमबखुद होकर मुझे देखने लगा। मैं महजूज होते हुए बोली, क्या हुआ? कहने लगा, तुम्हारी आवाज़। इसे क्या हुआ? मैंने कहा, मेरी आवाज़ ठीक हो गई है। ये सब तो एक ढोंग था जिसके बदले में मुझे तुम जैसा पुरखुलूस साथी मिला। तो ये तुमने अपने चाहने वालों को आजमाने के लिए ड्रामा किया जो तुम्हें शमाए महफिल बनाना चाहते थे।
اور یہ کہ تم بالکل ٹھیک تھی؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔ او رانائی، میرے پیار کی رانائی، یوسف نے بے قابو ہو کر خوشی سے اسے جکڑ سا لیا، اس طرح کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر دھڑک رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑکن صاف سن رہے تھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔